हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स। कल के लेक्चर में मैंने जो ट्रेस किया था कोनिक्स वो एक पैराबोला था। तो पैराबोला जब आपका डिसाइड हो जाए कि कोनिक्स पैराबोला है तो उसके पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन मिलता है कि जो कोनिक्स है वो इलिप्स या हाइपरबोला है देन उसके स्टेप्स अलग हैं, राइट। तो आज हम करेंगे वो कोनिक्स को ट्रेस जिसमें जो कोनिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलिप्स या एक हाइपरबोला। So this is an example number 2 in your book. It says trace the conic 8x square minus 4xy plus 5y square minus 16x minus 14y plus 17 equal to 0. Trace this conic. Solution. So compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. You will find a is 8, h is minus 2, b is 5, g is minus 8, f is minus 7, c is 70. Right? After this, you calculate the value of delta which is given by ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. ठीक है, after putting all the values you will find that delta is equal to minus 324 which is not equal to 0. Now you calculate the value of H square minus AB. H square minus AB, here it will be 4 minus 40 which is minus 36, right? So h square minus AB is negative, therefore AB minus h square is positive. ठीक है, so delta is not equal to 0 and AB minus h square is positive. These two conditions say that the conics is an ellipse. ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि जो चीज हम ट्रेस करेंगे वो एक इलिप्स ट्रेस करेंगे, राइट। तो अब क्या स्टेप्स हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, find center. Let the center be x1 y1. You have to find the values of x1 and y1. तो suppose this is fxy, the given equation जो है वो है क्या है fxy. Then you find curl f by curl x, that is equal to curl f by curl x is 16x minus 4y minus 16. ठीक है, equate it equal to 0 and then you find curl f by curl y which is equal to which curl f by curl y is minus 4x plus 10y minus 14 equal to 0. ठीक है, solving these two equations simultaneously you will find x is equal to 3 by 2 and y is equal to 2. So the coordinates of the center x1 y1 is equal to 3 by 2 comma 2. ठीक है, so step 1 is over, that you have found the coordinates of the center. Next step is you will find, okay, if you shift the origin to the center, ठीक है, the equation of the conics becomes ax square plus 2h xy plus by square plus c1 equal to 0. ठीक है, in the new system, right? If you shift the origin, देखो ये है old system, this is x axis, this is y axis. अगर आपने origin को center पे shift किया है, this is 3 by 2 comma 2, this is the center. If you shift the origin to the center, this is new system, right? According to this new system, equation of the conics becomes this, right? Where what is c1? c1 is given by gx1 plus fy1 plus c. ठीक है, ये हमने पहले भी किया है, राइट, सेकेंड एक्सरसाइज में. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c1. इट इज g की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करके x1 की, y1 की और c की, ये सारी वैल्यूज पुट करके यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ c1 इज 9. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स बिकम्स 8x square 2h, हमें पता है h minus 2 है तो 2h will be minus 4xy plus 5y square plus c1 is minus 9. ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को
ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? इक्वेशन ऑफ द कोनिक विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम इज 8x² minus 4xy plus 5y² minus 9 equal to 0. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8x² minus 4xy plus 5y² equal to 9. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में राइट साइड को 1 बनाना है. राइट साइड 1 कैसे बनेगी? इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 9, 8 1 9 x² minus 4 by 9 xy plus 5 by 9 y² equal to 1. राइट, तो जब आपकी ये राइट साइड 1 बन जाए, देन योर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² minus 4 by 9 minus it is of the form ax² plus 2hxy plus by² equal to 1. ठीक है, so you compare the coefficients, you will find a is 8 upon 9, h is minus 2 upon 9 and b is 5 upon 9. ठीक है, you can find the values of a, b and h. ठीक है, now you form the equation. Next step, you form the equation ab minus h² times r raised to 4 minus a plus b r² plus 1 equal to 0. ये सारे steps हम कर चुके हैं. These are for finding the lengths of axis, major axis and minor axis, right? Okay. तो इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे. a इंटू बी बन जाएगा आपका 40 अपॉन 81 माइनस h² दैट इज 4 अपॉन 81 r raised to 4 minus a plus b is minus 13 upon 9 r² plus 1 equal to 0. So ये एलसीएम लेके आपका बन जाएगा 4 upon 9 r raised to 4 minus 13 upon 9 r² plus 1 equal to 0. ठीक है, so after taking LCM you will find this is 4r4 minus 13r² plus 9 equal to 0. ठीक है, this is quadratic in r². ठीक है, क्वाड्रेटिक इन r². इफ यू सॉल्व इट फॉर r², ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड टू वैल्यूज ऑफ r². वन विल बी 9/4 एंड अदर विल बी 1. ठीक है, सो यू कैन सी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ठीक है, से दीज आर r1² एंड r2². जो बड़ी वाली है उसको आपने r1² का नाम देना है, जो छोटी वाली है उसको आपने r2² का नाम देना है. सो डैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी 2 times r1 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस will be 2 times r2. What is r1? r1² is 9/4. So r1 is 3 upon 2. ठीक है, 2 times 3 upon 2 that is 3. ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? r2 is 1, therefore it is 2 times 1 which is equal to 2. So length of major axis is 3 and length of minor axis is 2. ठीक है, now we will find equations of major and minor axis. Equation of major and minor axis are given by solving the equations a minus 1 upon r1² times x plus h times y equal to 0 and a minus 1 upon r2² times x plus hy equal to 0. ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि इक्वेशंस कैसे निकालनी है. ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक कैसे बनानी है. राइट, ध्यान रखें, a, b और h की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले आपने राइट साइड को 1 बनाना है, फिर कोएफिशिएंट्स रीड करने हैं. ओके, एज इट इज अगर आप a, b, h रीड कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा. पहले आप राइट साइड को 1 बनाओगे, देन यू रीड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड h. ओके, सो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज will be major and minor axis after putting the values will be 2x minus y equal to 0 and x plus 2y equal to 0. Now you can see these are the equations of axis with respect to new system. ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल x और कैपिटल y में है. राइट, नाउ हाउ will you convert it to the old system? हमें पता है कि जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं
न्यू ओल्ड सिस्टम किस में रिप्लेस हो गया, न्यू सिस्टम में। स्मॉल y किस में रिप्लेस हो गया, कैपिटल Y में। स्मॉल x किस में रिप्लेस हो गया, कैपिटल X में। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम इफ यू शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट x1 and y1? इट इज गिवन बाय x इक्वल टू x प्लस x1 एंड y इक्वल टू y प्लस y1। ठीक है, ये आपने किया हुआ है। So what is this? Capital X is x minus x1 and capital Y is y minus y1, right? ठीक है, जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, देखिए ये है ओल्ड सिस्टम, स्मॉल x स्मॉल y, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज व्हेन द ओरिजिन इज 0 0। ठीक है, और समवेयर हियर इज द पॉइंट, समवेयर हियर इज द पॉइंट x, y। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम, बट व्हेन यू शिफ्ट द ओरिजिन टू सम अदर पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट एच के, अगर आप एच के पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हो, दिस इज योर, these are your new coordinate axis, capital X and capital Y, then what will be the coordinates of this point with respect to the new system? क्या होंगे? X will be given by capital X plus H and Y will be given by capital Y plus K, where what is capital X, capital Y? These are the coordinates of the same point with respect to new system, right? तो ये आपने याद रखना है कि जब आप ओरिजिन को किसी पॉइंट एच के पे शिफ्ट करते हो तो ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या रिलेशन बनता है, ये वाला, राइट? तो हियर एच के पॉइंट इज x1 y1 बिकॉज वी हैव शिफ्टेड द ओरिजिन टू द सेंटर। ठीक है, सो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस x1, small y is capital Y plus y1, right? So after replacing capital X by, that is capital X is x plus what is the center, 3 by 2, and what is small y, capital Y plus 2। ठीक है, सो हमारा कैपिटल X आ गया x minus 3 by 2 and कैपिटल Y आ गया y minus 2। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y here, you will find equation of x's will become 2x minus y equal minus 1 equal to 0 and 2x plus 4y minus 11 equal to 0। ठीक है, so this is the equation of major axis and this is the equation of minor axis, right? अब हमने लेंथ निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की। अब अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, दिस इज द लास्ट स्टेप। अब थोड़ा ये आइडिया लगा लो कि कर्व ने कहाँ पे एक्सिस पे कट करना है और कौन सी जगह वाई एक्सिस पे कट करना है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, कर्व की इक्वेशन में अगर आप x को 0 रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कर्व y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। जब आप इक्वेशन में x को 0 रखोगे, यू विल फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स विल बिकम 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, बट जब आप y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो दे विल बी इमेजिनरी वैल्यूज, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्व है that does not meet y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही। ठीक है, अगर आपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं विद x एक्सिस तो यू विल पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ कोनिक। आफ्टर पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कोनिक, यू विल फाइंड 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट आप देखेंगे, इट विल बी नेगेटिव, देयरफॉर इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब ये है कि कर्व does not meet x एक्सिस। ठीक है, कर्व किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस को भी मीट नहीं करी। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है while tracing the कर्व, राइट? हाँ जी, अब आ जाते हैं ट्रेस पे। हाँ जी, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपने प्लॉट करना है सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ जी, अब आपने मार्जिन को भी मेजरमेंट करना है क्योंकि आपने लेंथ भी मेजर करनी है एक्सिस की। तो दिस इज 1, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 3। सो आपका पता है कि आपने जो स्केल लिया है उसमें जो 1 यूनिट है वो इतना है, राइट? इसको आप स्केल से मेजर कर लेंगे।
राइट। उसके बाद आपने कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, 3/2 कॉमा 2, 3/2, 3.2 दैट मीन्स 1.5 एंड 2, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, तो 3/2 एंड 2 ये होएगा आपका सेंटर। क्लियर। अब इस सेंटर के थ्रू आपने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को ड्रॉ करना है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन आपने निकाल रखी है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन आपने निकाल रखी है 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ट्रेस कर, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करनी आप सबको आती है, दिस इज वी हैव डन इन क्लास +1 +2। ठीक है, लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे दोनों, राइट। एक आएगी मेजर एक्सिस और एक आएगी माइनर, दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस विल बी योर माइनर एक्सिस। ठीक है, ट्रेस को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देनी है, दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 के बराबर। अगर ये टोटल लेंथ 3 के बराबर है तो मीन्स इधर से भी हमें 3/2 कट करना है, इधर से भी हमें 3/2 कट करना है। हमारा 1 यूनिट इतना है, तो दिस मच इज 1.5। इसको मेजर करके यहाँ पे स्केल रख के उतना मार्क यहाँ पे लगा दीजिए, 3/2 इधर, 3/2 इधर, सो दैट टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बिकम्स 3। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट सी विच इज सेंटर, दिस इज द पॉइंट सपोज ए डैश। ठीक है, अब आपने कट करने हैं माइनर एक्सिस की लेंथ। माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ जो है दैट इज 2। ठीक है, तो इधर से भी 1 ले लीजिए और इधर से भी 1 ले लीजिए, सो दैट दिस बिकम्स बी एंड दिस बिकम्स बी डैश। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, बस अब कुछ नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना है कि कर्व ने कहीं भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करना, वाई एक्सिस को मीट नहीं करना, बस। एंड यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड, हाउ डज एन इलिप्स लुक लाइक, एंड यू हैव टू जॉइन दिस पॉइंट्स। ठीक है, मेरा यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ, दिस इज बी, बी डैश के थ्रू निकालना है हमने, राइट। बन गया ना। सो द टोटल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2 एंड टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 3, 3/2 इधर से, 3/2 इधर से, टोटल 2, 1 इधर से, 1 इधर से, राइट। सो दिस बिकम्स द ट्रेस ऑफ द इलिप्स। ओके, यहाँ पे आपको फोकस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप निकाल भी लेते हो यू जस्ट हैव टू प्लॉट देम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपका इलिप्स जो है वो ट्रेस हो चुका है, राइट। So this is how you will proceed when you decide that the given equation of conics is an ellipse, right? Next is example number 3. Trace the conic x square minus 4xy minus 2y square plus 10x plus 4y equal to 0. Trace this conic. Solution. ठीक है, you compare the equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. After comparing, you will find a will be 1, h will be -2, b will be -2, g will be 5, f will be 2, c will be 0. ठीक है, so next step is the finding the value of delta. It will come out to be 6. 6 is not equal to 0. Then you will find the value of h square minus ab. This will be positive, so that your ab minus h square will be negative. ठीक है, so these are the two conditions where when you decide that the given conics is hyperbola. ठीक है, जब ये चीज नेगेटिव आ जाए और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, दिस इज द केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो आपने जो ट्रेस करना है वो क्या करना है, ट्रेस हाइपरबोला। नेक्स्ट स्टेप, यू फाइंड द सेंटर। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सेम मेथड से। यहाँ पे आपका सेंटर आ जाएगा x1 इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू 2, तो सेंटर विल बी -1, 2. नेक्स्ट you will the equation of conics with respect to new system. New system means when you shift the origin to this center, it will become ax square plus 2hxy plus plus ax square
plus 2h(xy) plus by² plus c1 equal to 0, where c1 is gx1 plus fy1 plus c. ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन x² minus 4xy minus 2y² minus 1 equal to 0. ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन बिकम्स दिस. नाउ इस कांस्टेंट को आप राइट साइड पे ले जाओगे, इट विल बिकम -4xy minus 2y² equal to 1. ठीक है, तो इसमें राइट साइड ऑलरेडी 1 है, हमने कहीं से भी डिवाइड नहीं करना. नाउ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² plus 2hxy plus by² equal to 1. ठीक है, इसके साथ कंपेयर करने के साथ आपको पता चलेगा a will be 1, h will be -2, b will be -2. ठीक है, अब आपने फॉर्म करनी है इक्वेशन. फॉर्म द इक्वेशन ab minus h² times r⁴ minus a plus b times r² plus 1 equal to 0. ठीक है, जब आप इसको फॉर्म करेंगे so it will be 6r4 minus r² minus 1 equal to 0. This is quadratic in r². Solving it for r², you will find two values of r². One will be r² equal to 1/2 and another will be -1/3. ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशंस पता चलेंगी, इक्वेशन लेंथ पता चल जाएगी. r1 जो बड़ा है उसको आपने r1 1/2 लेना है, r1² लेना है, और जो नेगेटिव है उसको आपने r2² कंसिडर करना है. ओके, सो दैट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस becomes 2 times r1, that is 2 times 1 upon √2, that is √2. ठीक है, लेंथ ऑफ conjugate axis will be 2 times square root of r2 minus r2. ठीक है, minus r2², it will be 2 upon √3. ठीक है, तो equations of transverse and conjugate axis are given by a minus 1 upon r1² times x plus hy equal to 0 and a minus 1 upon r2² times x plus hy equal to 0. ठीक है, so putting the values of r1², r2², a and h, you will find the length of transverse axis will be x plus 2y equal to 0 and length of conjugate axis will be 2x minus y equal to 0. ठीक है, now what are the relationship between old system and new system? ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के बीच में जो रिलेशन है, बिकॉज यू हैव शिफ्टेड द रीजन टू द सेंटर इज -1 2. ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिस्टम? इट विल बी x इक्वल टू x -1 एंड y इक्वल टू y plus 2. ठीक है, x plus h, y plus k, where h is -1 and y k is 2, right? So after putting the values of x and y in terms of small x and small y, you will find this is x plus 2y equal to 3 and this is 2x minus y equal to -4. ठीक है, so this is conjugate axis and this is transverse axis. ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट्स निकालने हैं where the hyperbola meets x axis and where the hyperbola meets y axis. ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा इक्वेशन कॉनिक्स की इक्वेशन में x को 0 पुट करके यू विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस. तो आपके आ जाएंगे y के 2 पॉइंट्स y इक्वल टू 0 and 2, सो दैट कॉनिक्स मीट्स y एक्सिस एट 0 0 एंड 0 2, राइट. और इक्वेशन में y को 0 पुट करके यू विल फाइंड टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 0 and -10, so that the given curve meets x axis at 2 points, one at 0 0 and other at -10, 0. ठीक है, बस नाउ यू आर रेडी टू प्लॉट दी हाइपरबोला. इसमें बुक वाले ने असिम्पटॉट्स की इक्वेशन निकाल रखी है, बट आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. यू विल नॉट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ असिम्पटॉट्स, राइट. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लॉट द सेंटर -1, 2, -1, 2, इट विल बी समवेयर हियर. ठीक है, दिस इज द सेंटर C. नाउ यू प्लॉट दी मेजर कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस. कंजुगेट एक्सिस आप देखोगे इस तरह से प्लॉट होएगी और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इस तरह से कुछ प्लॉट हो जाएगी. ठीक है, सो यू प्लॉट दीज 2 लाइन्स. आपके पास 2 लाइन यहाँ रखी हैं.
Now, what is the length of transverse axis? Length of transverse axis is it is √2. ठीक है, तो 1/√2 1/√2 दोनों साइडों से मार्क करना है हमें. 1/√2 1/√2, राइट. सो दिस इज सपोज ए एंड दिस इज सपोज ए डैश, राइट. और यहाँ पे 1/√3 1/√3 इधर से मार्क करना है हमें. दिस विल बी समवेयर हियर 1/√3. This much is 1/√3 and this much is also 1/√3. So this is your B and B dash. ठीक है, अब A और A dash, हाँ जी, और जो हाइपरबोला है वो 2 पॉइंट्स में मीट कर रहा है y एक्सिस को. कौन कौन से? 0 0 एंड 0 2. ठीक है, तो 0 2 एंड 0 0 से पास करवाना है आपने. 0 2 ये हो गया और 0 0 ये हो गया. और x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है कर्व? एक्स एक्सिस को मीट 0 -10 0 और इस पे. ठीक है, तो वो तो बहुत दूर है, तो वहाँ तक तो हमारी कर्व ऐसे जाएगी. मतलब जब ये ऐसे जाएगी तो यहाँ पे जाके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कहीं, राइट. -10 0 बहुत पीछे होगा, तो वहाँ पे जाके ये मिलेगी. हमें वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सॉरी, दिस इज ए डैश, यहाँ से निकलेगा. दोबारा प्लॉट करती हूँ. ए डैश, sorry, it is this one, it is the center -1 2. ठीक है, तो you draw conjugate axis, you will draw transverse axis. ठीक है, then you will mark A and A dash by measuring the lengths. You will mark B and B dash by measuring the lengths 1/√3. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका दिस वन, और यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला. ठीक है, और आपने असिम्पटॉट्स मार्क करने हैं, तो ये बन गया आपका असिम्पटॉट्स ऐसे, राइट. ठीक है, सो इस कर्व को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ट्रेस को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यू विल प्लॉट ऑल द इक्वेशंस कि ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन कौन सी है, व्हाट इज द सेंटर, हाउ मच इज दिस लेंथ, हाउ मच इज दिस लेंथ, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस. ठीक है, तो उसको सारा लेबल करके आपका जो ट्रेस है वो बहुत अच्छा दिखेगा. ओके, so you have to try all the questions of the exercise 2.1. This exercise and all the examples are very very important from examination point of view. Okay, एक का ट्रेस तो आपको पक्का एग्जाम में आएगा. थैंक यू.